नमस्कार। मेरा नाम है राजीव गुरबजाज जैन के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वणकम in Chinese, ni hao, in Japanese, konnichiwa, Pradeep ji. Abariyako, Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Right, so Pradeep ji, MLC polls, results Yes. are out. Out of the 11 seats, I think Milind Narvikar doesn't seem to have He's stuck. gotten through. He's stuck with He's 22. stuck. He's stuck at 22 votes. So I'm not sure how this proceeds. Will he be able to get through? Were there 11 seats or were there 12? Because Uddhav Thackeray Sena fielded Mr. Milind Narvikar as the 12th candidate. Yes, yes. So were there in total 12 seats? Because 11 MLCs retired. 11. तो 11 रिटायर हुए, तो 11 तो जीत गए, अकेला जनाब। So what about Jayant Patil? Not the Jayant Patil of the PWP. This is the PWP. Yes. तो 12 अगर कैंडिडेट थे तो क्या जयंत पाटिल साहब भी जीत गए? मतलब नहीं, वो हार गया, वो भी हार गए, and I think Milind Narvikar is stuck, and I think there were 13 candidates. मतलब 13 होने चाहिए कैंडिडेट, इसका मतलब? Yes. अगर 13 कैंडिडेट हैं तो जीत तो मतलब 11 के तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं. So which means I don't think Mr. Milind Narvikar will be able to get through. He's stuck, sir. He's stuck unless Parishad. There was one candidate more, and so is the extra candidate Milind Narvikar, or is it the gentleman from the PWP? Now, if Milind Narvikar is the 12th candidate, rightfully speaking, he should sail through. I mean, in the end, push through or whatever. But I doubt it, because nothing is very clear at the moment. The first votes are, I think, clear. Everybody. Because there was a fight between Pradeep ji, Milind Narvikar, Jayant Patil and Sadabhau Khoth. Sadabhau Khoth came for the remaining 2 seats. Yes. 2 सीट में. Correct. 3 की लड़ाई है. Correct. जिसमें सदाभाऊ खोट तो जीत गए. Correct. और 2 लोग बचे हैं, जिसमें मिलिंद नार्वेकर साहब को अभी भी 22 वोट तो मिल चुके हैं. 22 मिल चुके हैं. 22 years got. So one short of the 23 mark. But if he remains short, then what happens? It doesn't mean that the 11th seat that will remain vacant. Now that's. I think another 1 hour everything will be clear. और विजय वडेट्टीवार साहब ने बोला है कि कांग्रेस से किसी ने भी क्रॉस वोटिंग नहीं करी है, ये कहा गया है, ऐसा बोला है. लेकिन फिर अगर ऐसा था तो एनसीपी के टोटल 42 वोट्स थे, तो उनको 47 कैसे मिल गए? Yes, तो 5 वोट कहीं से आए ना. बिल्कुल. In fact, Narvikar getting more than 12 votes. I mean, I think that's huge. That's huge. He's got 22. Yes. मतलब सेकंड प्रेफरेंशियल वोट जो हैं उसको गए, मतलब मिनिमम 10 तो वोट मिले उसको हर जगह से. और प्रदीप जी, अभी तो खैर जहाँ तक जिस जगह पर हम हैं वहाँ तो सिर्फ एक ही चीज़ की चर्चा है, मुकेश अंबानी के सुपुत्र आनंद अंबानी साहब के विवाह की, और the wedding, and tomorrow the Prime Minister's over here in Mumbai. He has to inaugurate that thing near Goregaon. So will he be going to the wedding? I think he will, right? I don't think. I think Prime Minister doesn't have any qualms about meeting industrialists or flaunting the relationship. Yes. There's nothing wrong in that. But something wrong where extravagance, the ugly display of the wedding. I mean, you can't continue to show it continuously over the day, over so many days, और जिस प्रकार से exhibition of wealth जो आप dispose कर रहे हो to get the top stars of the world coming here by chartered flights and all those kind of things. I remember you always talked about the Sahara wedding, and then everybody knows what happens after that. Everybody knows. I don't think people now. I mean, एक certain limit तक आप ठीक कर सकते हो, because आज if the Congress says raising unemployment है, one of the biggest issues, the economy is taking a hit, and all these kind of talks जब जा रहा है, and हकीकत में हम देख रहे हैं कि the jobs are really affected. और जिस स्टेट में हम लोग हैं प्रदीप जी, जिस स्टेट में महाराष्ट्र में हम लोग हैं, पिछले बरस
2851 किसानों ने आत्महत्या की थी Exactly. यहीं पर 2851। और उनका ये था कि कोई 10,000 का अपना लोन नहीं दे पाया, 20,000 का, 25,000 का, 50,000 का, ऐसे ऐसे था। तो I mean, the wedding is fine. We all blessed. We feel very very happy for Mr. Ambani's family. But the only thing is that first the pre-wedding ceremonies at Jamnagar, where the Air Force Station was converted into an international airport, for a week. बिल्कुल बिल्कुल सर. And then after that this, and then the entire area of BKC being blocked, because today if you read the Mint says people have been asked to go and work from home. Yeah, exactly what you're saying. जो अगल बगल है, near the Geo Center Yes. and Dhirubhai Ambani Square. Yes. People have been told to. They said हम लोग जाएंगे and पूरा रोड तो ब्लॉक करके रखा है. No, but they have officially blocked it. Officially blocked. The traffic police has officially blocked In it. fact, they issued a circular also to the effect. जी. But एक चीज है कि पूरा BKC बंद नहीं है, because we all could come to the office. Yeah, So- but we are on the outskirts. of We are the this. outskirts, yes. We are not near this place. So either this side or that side, even people coming from that side of BKC, That's BKC, right. the main road has not been touched. Main road has not been touched. You are allowed the flow of traffic in the main road, main BKC road. This is only the Geo Center and all those. And the Dhirubhai Ambani Chowk. बिल्कुल बिल्कुल वो completely बंद वहाँ कर रखा है. वहाँ पर बिल्कुल ब्लॉक्ड है, और उनके आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, सब हैं। और जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, आप तो वहाँ पे रोज जाते हैं सुबह सुबह। It was not आज blocked. सुबह क्या हाल था मालूम नहीं मुझे। नहीं block था, because my wife could go to the gym and Okay. she would come back. There was no problem there. But the ugly display of extravagance of जो wealth है, I mean these could have been avoided. इतना सब क्या करने की जरूरत है? We are still reeling as an Let's economy. ask Mr. मुकेश गांधी। मुकेश गांधी साहब नमस्कार। नमस्कार। मुकेश गांधी साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। अजीत दादा पवार के गुट के यानी आपकी पार्टी के दोनों कैंडिडेट जीत गए। हाँ जी। जो आपके पास सिर्फ 42 वोट थे और आपको 47 मिल गए, 5 वोट आपको एक्स्ट्रा मिल गए, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और दूसरी बधाई है अनंत अंबानी जी की के विवाह पर, शादी पर। तो वो ये तो इतना तो उनकी बनता ही। शादी, मैं यहाँ पैडर रोड रहता हूँ, पीछे वो अल्टमाउंट रोड पे है, उनका पैडर रोड पे भी फ्रंट है और मेन गेट उनका पीछे अल्टमाउंट रोड पे है। आप वहाँ आके देखिए, आपको लगेगा कि आप बम्बई में नहीं, कोई रोशनी के एक शहर में आ गए हो। जी इतनी बिल्कुल। रोशनियाँ और इतना डेकोरेशन किया हुआ है कि इट्स अ वंडरफुल लैंड। तो अडानी के पूरे एनर्जी वहीं पर ट्रांसफर किए। The entire अडानी इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है। नहीं, यहाँ अडानी नहीं, हमारे एरिया में अच्छा। BST है। हाँ, अभी भी बीएसटी है सर इनके यहाँ पे। तो हम जितना पर यूनिट देते हैं, मुकेश अंबानी साहब उसका आधा देते हैं, याद रख लीजिए। वो जो भी मुकेश गांधी साहब, नहीं, अरे वो डबल भी दे तो उनको क्या फर्क पड़ता है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ। पूरा साउथ बॉम्बे जो है, साउथ मुंबई जो है, सबब से it is about 40% less the rates that the BST charges. Yeah. Which I think is BST is which I think is very unfair, and we had carried out an entire campaign to that effect, saying the rate should be the same for everybody in Mumbai. मुंबई में जो भी रहता है इलेक्ट्रिसिटी रेट्स एक ही होने चाहिए साहब। ये क्या है कि महिम के उस पार कुछ और महिम के इस पार कुछ और, मतलब ये क्या मतलब हुआ जी? साउथ मुंबई का रुतबा अलग है ना सर। हाँ, रुतबा अलग है, इसलिए आपको हर चीज मुफ्त में चाहिए। करेक्ट है, बिल्कुल दुरुस्त बात। नहीं मुफ्त में नहीं आधा रेट में चाहिए। ये सालों से ये हो रहा है जी दुरुस्त बात है। बीएसटी का स्टैंडर्ड बहुत मेंटेन कर रहे हैं वो, दैट इज द एप्रिशिएटिंग पार्ट। जी, लेकिन सर एक चीज बताइए, मुकेश अंबानी जी की बात अगर निकली है तो, एंड देन आफ्टर दैट वी विल कम टू पॉलिटिक्स। वो सर हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं जिनका नाम है अनिल गलगली साहब। अनिल गलगली साहब जो हैं वो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। तो उन्होंने एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी एमएमआरडीए में, और उन्होंने उनसे ये पूछा था कि भैया क्योंकि एमएमआरडीए की जो लैंड है आप खरीद तो सकते नहीं है, इट इज़ ऑन रेंट। जो भी ज़मीन है वो रेंट पे होती है एमएमआरडीए में, यानी बीकेसी इज ऑल्सो ऑन रेंट। तो मुकेश अंबानी साहब का जो जियो सेंटर है, जियो कन्वेंशन सेंटर, प्लॉट नंबर C64, जहां पर मैरिज सेरेमनी इस वक्त चल रही है, उनके लीज एरियर्स जो हैं, जो उनको एमएमआरडीए को अभी तक देने हैं, वो 4,381.32 करोड़ है।
4,381.32 करोड़ अभी तक MMRDA को नहीं दिए सर। तो आपको लगता नहीं है देने चाहिए सर? वो तो बहुत अमीर आदमी है, उनके लिए 4,000 5,000 करोड़ क्या है सर? वो तो 2 मिनट में दे देंगे, क्या है? व्हाई डू यू थिंक दे हैवंट गिवन? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से कोई मैटर ऑफ डिस्प्यूट हो सकती है। बाकी ये मुकेश अंबानी पेमेंट देने के बारे में और गवर्नमेंट ओवरड्यूज नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जामनगर का और यहाँ का मैंने सूरत का उनका हजीरा प्लांट ये सब जगह देखी है, कई जगह पे ओवरड्यू पेमेंट रखते नहीं है। अभी ये क्या मैटर है वो मुझे बिल्कुल उसके बारे में रूट भी मालूम नहीं है, तो मैं उसके ऊपर कमेंट क्या कर सकूं। पर मैं इतना कह सकता हूं कि कुछ मैटर ऑफ डिस्प्यूट होगी, नहीं तो 100% मुकेश अंबानी पेमेंट क्लियर ही कर देते हैं। वो गवर्नमेंट का ओवरड्यू रखने की और डिफॉल्टर हैं मेसर्स रिलायंस को छोड़ के अलावा, नमन होटल, अंबानी फाउंडेशन और रघुलीला बिल्डर्स। डिफॉल्टर में डिक्लेयर किया है क्या अंबानी को? जी हाँ, डिफॉल्टर में डिक्लेयर किया है सर, आया है। तो डिक्लेयर किया है तो ये तो सरकारी मामला हो गया, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। गांधी साहब, मुझे पहले एक 5-6 साल पहले एक याद है कि सेबी ने 1,500 करोड़ फाइन मारा था मुकेश अंबानी जी के कंपनीज को, एंड वो डिस्प्यूट में गए और अपील में 1,500 करोड़ का 15 करोड़ हो गया था। जी आई होप यू आल्सो नो इट। आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये क्या है, ये पूरा ये जो फिगर का मामला है, मैं इसके डिटेल में गया नहीं हूँ, पर मुझे एक लगता है कि मुकेश अंबानी हो, अदानी हो, गोदरेज हो, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसको गवर्नमेंट का ड्यूज पूरा भरना चाहिए, गवर्नमेंट का पैसा रखना नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा माने हमारा पब्लिक का पैसा है। What is your own opinion about the wedding ceremony and the pre-wedding ceremony? अभी तक जो चल रही है जो अंबानी साहब की, उस विषय के बारे में आप क्या कहेंगे सर? कुछ कहेंगे उसके बारे में? देखिए, अंबानी, मुकेश अंबानी जी, धीरूभाई अंबानी से लेके मुकेश भाई अंबानी, अनिल अंबानी, ये पूरा अंबानी फैमिली को शो ऑफ करने का बहुत ही शौक है, और वो जितना है उससे भी ज़्यादा शो करते हैं, एंटरटेन करते हैं अपने आप को। पर एक बात है कि एज पर द केन्स इकोनॉमिस्ट जो था, उनका कहने का ऐसा है कि श्रीमंत लोगों को, धनिक लोगों को अपना पैसा जो है वो घर में न रखते हुए समाज में, अगर वो शादी में, पार्टीज में और जगह पे स्पेंड करते हैं, तो वेलोसिटी एंड सर्कुलेशन ऑफ मनी कीप्स द थिंग्स इकोनॉमी स्ट्रांग। बट अगर ये इतना पैसा वो कहेंगे कि हम धर्मादा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसकी जगह इतना पैसा, भले ये शो होता है, ये एंटरटेनमेंट है, और इतना पैसा कमाने के बाद में अगर हम लोग जैसे सामान्य लोग भी अपने घर में शादी करते हैं तो 5, 25, 15 लाख रुपया तो गांव के लोग खर्चा करते हैं, और हम सिटी के लोग होते हैं तो 50 लाख से करोड़ रुपया खर्चा करते हैं और हम शो ऑफ करते हैं। तो मुकेश अंबानी को पूरा राइट है कि इतना पैसा उन्होंने समृद्धि प्राप्त की है तो अपनी शादी को शानदार रूप से सेलिब्रेट करें, लोगों को इनवाइट करें, लोगों को एंटरटेन करें, लोगों को अच्छा खिलाए पिलाए, और साथ में वो दान धर्म भी इतना ही करते हैं। जामनगर में, गुजरात में, बंबई में इन्होंने हजारों फैमिलीज को ये दिया है, समूह लग्न करवाए हैं कितने लोगों के, और कितने लोगों को अन्नदान दिया है, और प्रकार की फैसिलिटी भी इन्होंने ये शादी के निमित्त में दी है। ये जितना शो हमको बाहर से दिखता है टीवी पे, उससे भी ज्यादा उसने पैसा गरीबों में, समाज के निम्न स्तर के लोगों के अंदर बांटा है। वे भी एक मुकेश अंबानी की विशिष्टता है, और नीता अंबानी और मुकेश अंबानी हमारे सनातन धर्म के उपासक है, और वो हमेशा सनातन धर्म का भी, उपासना का क्रम भी अपनी शादी में दिखा के हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म को भी बहुत ही अच्छा। मुकेश गांधी साहब, so you don't believe this is an ugly display of wealth, ugly display and extravagance? Not at all. Yeah, because not at all. This is not an ugly display. This is not an ugly display. What is the ugly display? अगर एक अपना इतना विश्व का एक धनाढ्य आदमी अपने लड़के की शादी में जो खर्च करता है, वो खर्च जो आप अगर अभी उन्होंने जो दागीना लिया, 400 करोड़ की गिफ्ट दी, 500 करोड़ का प्लेन दिया, ये किया,
that comes under their asset in their own property value. शादी में जो खर्च किया है वो उसमें शानदार ये किया हुआ है, तो ये कोई अगली शो नहीं है, but this is the beautiful show according to me. Not because Mukesh Ambani is staying by near to me, and I like that Mukesh Ambani. I don't have any Reliance shares with me also, so I am not after that money also. But I like Ambani has done these things, and all rich people should play in the society. Yeah. Should display the wealth of the society. Even if some people find it very extravagant. अरे प्रदीप जी, इसमें सर्कुलेशन ऑफ मनी तो समाज में आता है ना, ये डेकोरेटर को, इसको उसको, हजारों लाखों लोगों को इसमें से पैसा मिलता है, कमाई मिलती है, तो ये पैसा समाज में सर्कुलेट हो जाता है ना। ये पैसा घर में थोड़ी रहता है, डिजाइनर से लेके छोटे से छोटे वर्कर तक भी ये पैसा पास ऑन होता है। और इसमें ये कोई इतना बड़ा अगलिश नहीं है कि जिसकी हम क्रिटिसिज्म करें कि जिसने कोई स्टैंडर्ड को, संस्कार से विरुद्ध कोई प्रदर्शन किया, ऐसा तो किया नहीं है। इफ द थिंग्स आर अगली, अगली मीन्स विच इज नॉट अप टू द कैरेक्टर मार्क, नॉट अप टू द हमारे संस्कार की ugly in the sense extravagance रहता है। ugly in the sense extravagance नो, दिस इज नॉट एक्स्ट्रावेगेंट। ये शादी तो ऐसे रुआब से करनी चाहिए, और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि श्रीमंत धनिकों को अपने लग्न समारोहों को शानदार तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, पर साथ में धर्म की उपासना और जन सामान्य को अन्नदान भी इतना देना चाहिए। ये तीनों का कॉम्बिनेशन मुकेश अंबानी की शादी में है, ऐसा मेरा मानना है। सर मुकेश अंबानी की शादी नहीं है, अनंत अंबानी की है। मुकेश अंबानी शादीशुदा है। हाँ, माने मुकेश अंबानी की शादी माने मुकेश नहीं तो नीता भाभी मारेगी हमको। तो सर ये बताएं, कल तो मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक ही इज कमिंग टुमारो ओवर हियर। मोदी जी कल यहीं यस मुंबई में, तो मोदी जी जाएंगे क्या इधर अंबानी साहब के घर में जो विवाह है? उनका प्रोग्राम पता नहीं है, पर मोदी जी आएंगे और कल उनको शादी में जाएंगे तो मुझे आनंद होगा, क्योंकि इतने बड़े हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले, शेयर वैल्यू से उनको वेल्दी बनाने वाले, कितने लाखों घरों का जिससे गुजारा होता है, ऐसे मुकेश अंबानी के घर पे शादी हो और हमारे प्राइम मिनिस्टर आए तो मुझे बहुत आनंद होगा। जबरदस्त सर। But I think what you're saying is right, Mukesh Gandhi ji. Modi ji is not afraid of showing his affection to industrialist. उनके दोस्ती इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको डिस्प्ले करने में वो बिल्कुल कतराते नहीं है। He is very open about it. He says there's nothing wrong in that. These are wealth, generators for the nation. That's what he believed. मुकेश जी। हाँ जी। वो तो होना ही चाहिए ना, उसमें क्या है। देखिए, महात्मा गांधी जी भी बिरला जी को इतना ही महत्व देते थे, तो क्या महात्मा गांधी जी को बिरला जी ने खरीद लिया था क्या? आज इन पूरे नेशन को, आज जब 5th लेवल पे हम आ गए हैं और हमको 3rd लेवल ऑफ इकोनॉमी वर्ल्ड में जाना है, तो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और नरेंद्र मोदी जी, मुझे तो पता है कि गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर थे 12 साल, तो मैक्सिमम लोगों की, छोटे से बड़े लोगों की शादी में भी जाते थे, उनकी हौसला अफजाई देते थे, अपना ब्लेसिंग देते थे। और कई फैमिली को उन्होंने पीछे से, छोटे छोटे मिडिल क्लास के फैमिली में शादी में प्रॉब्लम आई और उन लोगों ने कुछ अपील की है, तो अंबानी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और श्रीमंत लोगों को बोल के उनका प्रॉब्लम भी नरेंद्र मोदी जी ने सॉल्व करके उनको शादी के लिए भी मदद की हुई है। ऐसे कई दृष्टांत मेरे सामने हैं, सूरत, अहमदाबाद, भावनगर, राजकोट में जी। तो सर ये बताएं, नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल बहुत अलग है, वो अलग आदमी है। वो जितना बड़ा है उतना ही वो धरती पे अपना पैर रख के सामान्य से लेके असामान्य लोगों की केयर करने वाला आदमी है। तो हम सब की तरफ से, और मुकेश गांधी जी की तरफ से, हम सब की तरफ से अंबानी परिवार को अनंत अंबानी की शादी पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी तरफ से। यस जी। तो सर बधाई। तो सर अजीत दादा पवार साहब जो हैं वो मतलब अब तो ऑल दी एमएलएज हैव स्टक बाय हिम, ग्रुप साथ में ही हैं, अभी तो नहीं टूटा है। बीच में जो बातें चल रही थी कि टूटने वाला है, लोग इस तरफ जाने वाले हैं, उस तरफ जाने वाले हैं, और यहीं साथ में ही मतलब बीकेसी के अंदर ही थे, काफ़ी
सारे लोग तो, और कुछ लोग तो साउथ बॉम्बे में भी थे मतलब 5 स्टार और होटल में सबको रखा हमारे हुआ लोग था। हम ललित में थे, ललित में। जी, तो मतलब हाँ, सब लोग यहीं थे, तो वो रखने की क्या जरूरत पड़ गई सर, तो सबको इकट्ठा, मतलब क्या हो गया? मुकेश गांधी जी। ये एक ट्रेंड है, ट्रेंड है सर, ये एक ट्रेंड है। 40 लोगों को अभी वहाँ कोई आमदार भवन में रहेगा, कोई होटल में रहता है, कोई बाहरगांव से आता है, तो एक दिन के लिए अपनी एकता जुटाने के लिए और रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए एकजुट रखना जरूरी होता है ऐसे टाइप के इलेक्शन में। तो उसमें कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब सर पहले तो रिस्क नहीं होता था, ये अभी रिस्क जो है ये कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है। हाँ, तो अभी जरा थोड़ा ये रिस्क क्यों हो गया सर, uncertainty ये जरा है। बताएं। अभी आप देखिए ना, कांग्रेस के मत निकल गए, आज नार्वेकर आया नहीं, अपना ये जयंत पाटिल शेकापा पक्ष वाले आए नहीं, तो ये सब प्रॉब्लम तो होता ही है। तो इसके लिए रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए ये सब प्रयत्न आज की लोकशाही में करना ही पड़ता है। गांधी साहब, मगर आप सोशलिस्ट विचारों के थे पहले से, मींस आपके ऐसे नहीं है कि यू आर वेरी कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड मैन, योर बिलीव्स, योर रूट्स और फंडामेंटल्स पूरे सोशलिज्म से आते हैं। मीन थोड़ा बहुत, हाउ मच आई कैन रीड यू, हाउ विल अ पुअर मैन, जो गरीब से गरीब आदमी है, जो शेतकरी है, अनएम्प्लॉयड है, जो गरीब से गरीब आदमी है, जो दिन के उनकी तकलीफ है जीने का, हाउ इज ही गोइंग टू सी दिस? जिनको हम लेके आ रहे हैं वो 5 स्टार होटल्स में, इनको हाउस किया जा रहा है, एक नहीं 40 50 लोग। अगेन वी कॉल इट अगली डिस्प्ले, बट यू विल कॉल इट अ नेसेसिटी। बट हाउ डू यू सी, आपके दिल से आप बात करो कि एक शोभा दे रहा क्या? स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट हाइट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट फार्मर सुसाइड, वी आर टॉकिंग अबाउट सच अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर अफेक्टिंग द कॉमन मैन। Don't you think this is again an ugly display of wealth where the political parties are concerned? नहीं प्रदीप जी, ये आपकी बात बहुत सही है। एक जमाने में जितना सिंपल कार्यकर्ता राजकारणी जब लोगों को दिखता था तो लोग उनको सम्मान की नजर से देखते हैं, और आज का दौर ऐसा हो गया है कि अगर वो बड़ी 5 स्टार मर्सिडीज गाड़ी BMW से उतरेगा तो उसको रिस्पेक्ट देते हैं कि हमारा नेता पैसा वाला है तो हमको कुछ देगा। पर ये बात बहुत गलत है, और मेरे हिसाब से, मेरे व्यक्तिगत मत पूछो, मैंने पहले जो आपको दिया वो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन दिया मेरा, पर मैं व्यक्तिगत मत में आपके साथ में सहमत हूं कि ये 5 स्टार होटल की कल्चर आजकल हमारे लोकशाही में हर स्टेट के अंदर ऐसे विधान परिषद के इलेक्शन में घुस गई है, वो बहुत गलत है। ये 5 स्टार कल्चर से आम आदमी को बहुत बड़ा आक्रोश खड़ा होता है, और ये आक्रोश को हमारे पॉलिटिशियन आज नजरअंदाज कर लेते हैं, वो भी बहुत गलत है। तो मैं आपके साथ सहमत हूं कि ये शो ऑफ नहीं होना चाहिए। ये 5 स्टार कल्चर बहुत जल्दी हमारे सर देश से, महाराष्ट्र से लेके देश क्योंकि से जो आपने निकलनी बात चाहिए। कही अभी मुकेश गांधी साहब, जो आपने अभी भी बात कही कि सबको MLA हॉस्टल में भी तो रखा जा सकता था, वही हाँ रह जी, जाता, हाँ जी। उसमें क्या है मतलब अरे और साहब, अजीत दादा सह्याद्री पवार, MLA हॉस्टल इतनी जगह है कि जहां लोगों को रख सकता जी। है। अगर जो आदमी को बिना पकड़ के वो आता नहीं है तो उनको छोड़ दो ना। क्यों इतना मस्काबाजी और इतनी क्यों चापलूसी चल रही है? ये आम जनता का आक्रोश तो है ही भैया, वो तो हम उसको दरगुजर नहीं कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि जो प्रदीप जी ने कहा, देखिए साहब, पिछले साल 2851 किसानों ने आत्महत्या करी सिर्फ महाराष्ट्र में। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं, मेरे नहीं। हाँ हाँ, तो मेरा ये कहना, तकरीबन 8 किसानों ने हर रोज आत्महत्या की है। और आत्महत्या किस वजह से करी है? आर्थिक कारणों की वजह से करी है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे स्टेट में इस प्रकार MLAs को एक हफ्ते के लिए मतलब 5 स्टार होटल में रखना, वहाँ पर रखना, फिर अभी उनकी तस्वीरें आएंगी स्विमिंग पूल में, इधर उधर उधर उधर, ये क्या है? दिस इज ये मतलब हाउ विल अ पुअर रिलेट विद ये क्या है? गरीब से गरीब इंसान कैसे रिलेट करे? और आप कहते हैं आप जनसेवा के लिए आए हैं, और आप कहते हैं ना प्रदीप जी कि असेंबली में आने के पहले, जीतने के पहले आप जनसेवा के लिए आए हैं। मतलब जनसेवा हो रही है एक जमाने में। आजकल तो सर एक जमाने में जिसके पास ऑटो नहीं होता था, जिसके पास स्कूटर नहीं होता था, आज वो SUV में घूम रहा है, आज वो रेंज रोवर में घूम रहा है। मतलब बहुत अच्छी, मतलब जनसेवा जो है बहुत प्रॉफिटेबल चीज है, कहने का मतलब। एंड पॉलिटिकल पार्टी सर, इतने पैसे आपके पास है कि आप 50-50 MLAs को
होटल 5 स्टार होटल में रख के उनको फीड कर रहे Sir, हैं। and they're all living not in rooms. Yes. They've got suites. They've बिल्कुल got sir. other things. So which means अगर आप मिनिमम से मिनिमम, चलिए मिनिमम रेट अगर आपको मिल रहा है तो एटलीस्ट 15,000 का रेट तो है ना सर दिन का, 15 to 20,000 a day. And apart from that, what you are eating, what you are drinking, how you are entertaining, and so on and so forth, which means you are spending about 50,000 rupees a day on one person. So Mukesh Gandhi sahab, do you think this expenditure is justified? Because somewhere or the other, from somewhere or the other, this will be taken from us. Mukesh Gandhi sahab. सर ये जो बात है ना, ये जन सेवा के नाम पे धन मेवा कमाने की आज की राजकारण की एक लाइन हो गई है। जितनी लोगों की जन सेवा होनी चाहिए थी उतनी जन सेवा आज नहीं होती है, वो हम लोग देखते हैं। जी। फिर भी क्या है कि पूरा ट्रेंड जो है ना, वो पूरा ट्रेंड आज आम आदमी का रहा नहीं है। आज हर इलेक्शन भी इतना महंगा हो गया है, कॉरपोरेशन का इलेक्शन लो, ग्राम पंचायत का इलेक्शन लो, नगर परिषद का इलेक्शन लो, हर जगह पे पैसा 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 इतना जबरदस्त ये हो गया है कि मुझे तो लगता है कि आगे जाकर के फिर से जयप्रकाश नारायण जैसे एक जन नायक को खड़ा होना पड़ेगा, लोक आंदोलन करना पड़ेगा। और सादगी क्या चीज है, और पब्लिक का एक भी पैसा कोई भी जनप्रतिनिधि को यूज करने नहीं देना चाहिए, ऐसा रूल आना चाहिए। तब मुकेश गांधी साहब, चलते चलते आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी। Sorry to come back to the Ambani wedding. Yes, sir. I used to love Dhirubhai Ambani. I think he used to love me. I think. मतलब हमेशा जब भी हाँ जी। मिले, मुझसे तो बड़े प्यार से मिले साहब, बहुत प्यार से, मतलब हाँ इतनी जी। प्यार से कहने की इतनी, मतलब 3-4 हाँ बार जी। तो ऐसा हुआ है कि बहुत नाराज हो गए कि तू साला बिना खाए निकल रहा है क्या समझता है तू, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। But all I'm asking you is this, मुकेश अंबानी साहब के बेटे की वेडिंग प्रिपरेशंस को देखते हुए, वेडिंग सेरेमनी को देखते हुए, और उसके पहले जामनगर में जो प्री वेडिंग सेरेमनीज थी, जिसमें जामनगर इंडियन एयरफोर्स का जो स्टेशन है जामनगर, वो एयरफोर्स से लेकर के डीजीसीए ने उसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया था फॉर 7 days। सर, लोगों में ये एक बहुत बड़ी भावना चल रही है कि सीधा मुकेश अंबानी साहब को चुनाव में खड़ा हो जाना चाहिए, उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दीजिए ना। लेट अस कट आउट द मिडिल मैन। मतलब बीच में कोई रहना नहीं चाहिए, कोई पॉलिटिशियन काय को हो, सीधा जो देश के असली मालिक हैं, अंबानी साहब हो गए, अडानी साहब हो गए, अपने रुइया साहब हो गए, सिंघानिया साहब हो गए, इन्हीं सबको दे देते हैं, सीधा इन्हीं को वोट दीजिए। क्या कहेंगे सर इसके बारे में आप? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है। देखो, ऐसा है कि जो करते हैं वो लोगों की नजर में आता है, लोगों को दुख होता है, लोगों के अंदर आक्रोश भी पैदा आप होता कॉन्ट्रास्ट है। देखिए ना सर, आप कॉन्ट्रास्ट देखिए। पर मिस्टर अंबानी, ना जस्ट हियर मी आउट। मिस्टर अंबानी डिजर्व्स whatever he has got. He has worked very hard for it. Okay, I've seen them. I've seen the Ambani's work. जो वो पैसा खर्च रहे हैं उनका कमाया हुआ पैसा है, ठीक है सर, वो पैसा खर्च रहे हैं। ऑन बाय कॉन्ट्रास्ट जो प्रदीप जी ने अभी बात करी with regard to the politicians staying at 5-star hotels, where are they getting the money from? So why should we have them? Let's go straight to Mr. Ambani only. ये अजीत दादा पवार हो गए, अपने एकनाथ शिंदे साहब हो गए, शरद पवार साहब हो गए, इनकी जरूरत क्या है, सीधा इधर जाते हैं ना। और गांधी साहब, आप जो बोल रहे थे अभी, बजाज साहब, आजकल एमएलए एमपी सब बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर ही है। गरीब आदमी कहाँ, वो जमाना गया जो आप बोल रहे कि गरीब से गरीब आदमी एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, कॉर्पोरेटर बन सकते हैं। आज जितने आप बिल्डर देखो, वो बोले कि ये ही इज वीडेड आउट द मिडलमैन, बोले नहीं भाई खुद बन जाता हूँ। सब एमएलए बिल्डर ही है। पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट है कोई, मंगल जी देखो, मंगल प्रभात लोढ़ा जो आपके बगल में रहते हैं, वो खुद ही मिनिस्टर भी है, खुद ही बिल्डर भी है। ऐसे डाउन द लाइन एमएलए सब बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर। आज गरीब इंसान कोई देखेगा ही नहीं आप उधर, और उसको वही कल्चर चाहिए जो आप बोल रहे हैं, 5 स्टार कल्चर। सर प्रदीप जी, राजीव जी, इसका मेन कारण क्या है कि आज हमारी लोकशाही में इलेक्शन एक बहुत बड़ा व्यापार हो गया है। आज हर इलेक्शन लड़ने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है, और किसी का जनाधार नहीं है। जातियों के बीच में बंटवारा करना, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपना उल्लू सीधा करना,
ये राजनीति बन गई है। अभी नरेंद्र मोदी जी जैसे एक आधा मसीहा जैसा आदमी आए, सादगी की बात करे, नो करप्शन, खाता नहीं हूं तो खाने देता नहीं हूं, फिर भी नीचे के लोग खाते ही है, छोड़ते ही नहीं है। इतना भ्रष्टाचार, और आगे जाके मैं कहता हूं कि व्यभिचार भी इतना चलता है और लोग देखते हैं, आक्रोश करते हैं, फिर भी कोई रास्ता निकलता नहीं है। इसके लिए हमें बहुत आमूल परिवर्तन की जरूरत है, पर वो आमूल सर लेकिन परिवर्तन सॉरी टू कैसे इंटरप्ट आएगा? यू कैसे सर, आएगा? उनके ऊपर आपको भी रोकने चर्चा के लिए करनी है। माफी, आपको नहीं, रोकने के sorry। लिए माफी। भोपाल में आदरणीय सामान्य नरेंद्र मोदी जी ने एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताया और अजीत दादा पवार के कॉन्टेक्स्ट में कहा 70,000 करोड़ का स्कैम। जैसे ही वो एनडीए में आ गए, क्लीन चिट मिल गई। छगन भुजबल साहब को क्लीन चिट मिल गई। आप हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं साहब, आपके तो बहुत ही अच्छे मित्र हैं वैसे, प्रफुल्ल पटेल साहब, उनकी 181 करोड़ की जो प्रॉपर्टी अटैच थी वो भी वापस मिल गई उनको, क्लीन चिट भी मिल गई। रविंद्र वाइकर जी को भी क्लीन चिट मिल गई। तो सर ये कुछ जरा जमा नहीं, कुछ आरएसएस भी यही बोल रही है, ये जमा नहीं। नहीं सर, जमा। अब आप ये नहीं, बताइए, जमा आप ये नहीं, आप बताइए, देखिए, जिनको ऐसा है। आप बोल रहे थे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, उनको क्लीन चिट मिल गई अभी, तो हाँ। क्या मतलब हुआ सर इसका? सर, जैसी ये आपके क्या पास है? आए क्लीन चिट मिल गई। नहीं, पर क्लीन चिट भी उनको ऐसे थोड़ी बीजेपी दे सकती है सर। उनका पूरा केसेस चलता है। मैं देखिए प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में मैं आपको बोलूं, क्योंकि मुझे उनकी पता है, मैंने उनके ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिखी है इंग्लिश में, उड़ान करके। तो ये जो जमीन थी वो उनके पिताजी की थी, और ये सीजे हाउस जहां बना है, और वहां वो उनका कुछ ये इलीगल इनका कुछ कैप्चर किया था, तो वो केस के अंदर पूरी मैटर चली थी। इनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी, और कई लोगों ने इसके अंदर घुस के अपना राइट जमा दिया था, और राइट निकालने का काम प्रफुल्ल भाई ने किया है। उसमें उनका कोई अंडरवर्ल्ड के साथ में कोई कनेक्शन नहीं था, या इन्होंने सबको कोई पता है सर, प्रफुल्ल पटेल ने वो हर एक को मालूम है। नहीं, तो वो हर अभी एक को क्या मालूम है? है। तो फिर केस क्यों देखिए, किया गया? इतनी देर तक ऐसा उनके ऊपर है। प्रेशर क्यों डाला गया? और जैसे ही वो बीजेपी के साथ आ गए, केस एकदम खत्म हो गया। नहीं, इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ खत्म होने के लिए था। आई सी। So Sir, we should it was file a on the verge prosecution of against the खत्म। CBI. देखिए आप देखिए। So rightfully speaking, CBI and ED should be prosecuted for देखिए। troubling an innocent man like Mr. प्रफुल्ल पटेल। सर अगर उन्होंने केस क्यों उनका- किया? 7 के 8 अगर- साल से मुझको मालूम है प्रफुल्ल पटेल साहब को क्या क्या किस मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा उनको। तो जिसने भी केस किया, जो भी डायरेक्टर था, उसको जेल में डालना चाहिए। नहीं, जेल में वो उनका वो दैट इज द लीगल मैटर, पूरी अलग तरीके से है। पर मेरा कहने का बात क्या होती है कि अभी अजीत दादा के बारे में लोग बोलते हैं कि 17,000 का कौभांड किया, और आपको नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल मालूम है कि यहाँ आके कहेंगे डुप्लीकेट शिवसेना है, ये है वो। इलेक्शन के टाइम में पब्लिक को फ्लेयर अप करने के लिए बड़े नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं, पर जब सच्चाई सामने आती है तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आपने ही पहले कहा था ना कि 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, ये वो सब उस टाइम में कांग्रेस का चढ़ा बढ़ा के बीजेपी ने किया, और बाद में कुछ निकला नहीं। तो क्या अभी इनके आने के बाद में वो सब स्कैम निकल गए क्या? तो वो निकल गए क्या? तो इनका भी कोई स्कैम नहीं था सर जी, मैं ये कहना चाहता हूं। पर ये एक इलेक्शन की फ्लेयर अप हुई बातें थी। और देखो, मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी जानता हूं अच्छी तरह से। 70,000 का कौभांड करना, इट्स नॉट ए जोक एट ऑल। पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है, वैल्यू का बढ़ावा कितना होता है, उसमें कितने ये होते हैं। अभी आप देखिए कि आप ऐसा गिनो तो कोस्टल रोड के ऊपर भी आप इंक्वायरी निकाल सकते हैं। पहले सर इंक्वायरी हर चीज पे निकल सकती है। शुरू किया उद्धव ठाकरे जी ने, तब कोस्टल रोड का बजट क्या था और आज क्या बजट हो गया। जी दुरुस्त बात। तो ये तो सब चलेगा सर। इसमें से क्या कौभांड हुआ है, क्या मनी की हेराफेरी हुई है, वो हम आम जनता जान नहीं सकते हैं। हमको जो राज्यकर्ता है, जो पॉलिटिशियन नेता है, उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है। और जिन्होंने अगर सच्चाई से ये बुरा काम किया होगा,
तो कर्म उनको माफ नहीं करेगा, So, do भगवान you माफ नहीं think we करेगा। should request Mr. Mukesh Ambani to float his own political party, and we सर, should vote for it? उनको कोई देखिए, फॉरेन में यूएसए में भी आप देखो ना, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है यूएसए, लंदन, वहां भी अंबानी और इनके जितने कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कितने बड़े बड़े मनी लेंडर्स हैं, वो भी अपना देश में अपना काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी या और अपना शो बिजनेस भी करते हैं। तो दे कैन नॉट बिकम द पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन की जात अलग होती है भैया, और इंडस्ट्रियलिस्ट की जात अलग होती है, उनको अलग अपने So तरीके the से ही काम करना middleman will पड़ता है। always remain, according हाँ to जी। you, क्योंकि यहाँ तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कट आउट द मिडलमैन, सीधा मुकेश अंबानी साहब को और गौतम अडानी साहब को बोल देते हैं कि आप लोग नहीं हमारे नहीं लिए नहीं हो, defense नहीं नहीं minister or हो, prime सर minister? हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। But you are talking about revolution. आप बोल रहे कि जयप्रकाश नारायण जैसे एक रेवोल्यूशन आएंगे तो चेंजेस आ जाएगा, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर ये सब। हाँ। पर देखो, जयप्रकाश नारायण जी भी आए तो एक राजनारायण वहां उस टाइम में खड़ा हो गया और पूरी जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट को खत्म कर दिया। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। आज भी कोई बड़े नेता आते हैं, बड़े कोई विभूति आती है, देश के लिए काम करती है, एक माहौल खड़ा करती है, पर नीचे ऐसे लोग खड़े होते हैं। हमारे जे कृष्णमूर्ति जैसे फिलोसोफर हो गए, उनके पास देव और दानव आए। देव ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा काम करूंगा, दानव ने कहा मैं तुम्हारे पीछे एक संस्था खड़ी कर दूंगा। बस संस्था आ गई, एस्टैब्लिशमेंट, आपकी करप्शन एंड ऑल रॉन्ग प्रोसीजर स्टार्ट्स, एंड जो देव का, भगवान का जो अच्छा हेतु है उसको वो कट ऑफ करते हैं। ऐसी परिस्थिति आज सारे देश में और वर्ल्ड में है सर। इसके Right. लिए क्रांति का नाम बहुत अच्छा लगता है, पर सम्यक क्रांति होनी चाहिए, संक्रांति होनी चाहिए। वो संक्रांति होती नहीं है, क्रांति एक रेवोल्यूशन दिखाई देता है, चेंज दिखता है। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन किया चिमनभाई पटेल ने, और बाद में चिमनभाई पटेल को उड़ा दिया। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में ऑल करप्शन चालू हो गया गुजरात में, और कांग्रेस ने बहुत अलग ढंग से उसको काम किया। फिर बाद में बीजेपी आई, बीजेपी ने उनके सामने अपना इलेक्शन लड़ा। आज महाराष्ट्र में भी देखो परिवर्तन की लहर आई है, और आने वाली विधानसभा में आप देखना हमको एक नया माहौल दिखने को मिलेगा, एक नया वोटिंग पैटर्न हमको दिखने को मिलेगा, ऐसा Fantastic. मुझे तो लगता है। मतलब यू एग्री विद मिस्टर शरद पवार के एमबीए को 225 शरद सीट पवार मिलेगी? के साथ मैं एग्री नहीं हूँ। शरद पवार साहब जो है ना, ओ, उनका जो स्टेटमेंट है ना, वो बहुत ही सेल्फ सेंट्रलाइज्ड है। उनको अपने आप को जीताना है, अपनी पार्टी को खाली जीताना, इतना नहीं ही मैं उनका सोच रहा था है। क्योंकि अजीत दादा पवार और शरद पवार साहब का तो मेल होने वाला है, अभी वापस नहीं विलय होने होगा वाला सर। है, तो अजीत पवार इतने स्ट्रांग माइंड के आदमी हैं, मैंने उनको पर्सनली देखा है, और वो इन्होंने पूरा अभी देखो इतना अच्छा बजट दिया है, इतना अच्छा बजट दिया है, मैंने दिया है नहीं, आप पूरा एनालिसिस खाली बजट के ऊपर रखो, तो इतना अच्छा बजट होने So के we'll do बाद that में next time, महिलाओं sir. But thank you very much, Mukesh Gandhi sir, for joining us. And once again, we must congratulate the Ambani family. And I personally shall request Mr. Mukesh Ambani that he must stand for election. I think और we हमारे might as well vote for him. अनंत अंबानी का और हमारी बेटी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, दोनों का दाम्पत्य जीवन प्रसन्न रहे, और धन्यो गृहस्थाश्रम बस उनको मिले, यही हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना Right. करते हैं। Thank you so much, sir. Namaskar. Thank Jai you. Hind. Thank Jai you. Hind, sir. Jai Namaskar. Hind. जय हिंद। So Mr. Mukesh Ambani does not agree. He wants the middleman to remain. After all, सीधी बात It's करते a हैं disturbing साहब. trend. I hope more and more people, parties give, candidates with clean disposition party tickets, so that Yeah, That's we've been dreaming of that for the last Welcome. God knows how many years. Let's go straight across to